بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج میں آپ کو جغرافیہ کی پیج نمبر آپ لوگوں نے اوپن کرنے 28 اس کی مشق کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچن آنسرز جو ہیں وہ پڑھا رہی ہوں. اور دیکھیے آگے اگر لانگ کوشچن جو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو پہلا پڑھا دوں گی. ٹھیک ہے. پہلا ایم سی کیو. فرسٹ ایم سی کیو ہے شور کی آلودگی کا نتیجہ. ہائی بلڈ پریشر مارک کر لیں. گلیشیئر پگھل رہے ہیں گلوبل وارمنگ سے. مختلف گیسوں سے مل کر بنا ہوا ہے کرۂ ہوا. اوزون کی تہ کمزور ہو رہی ہے. فضائی آلودگی سے خطرناک گیسیں ہوا میں شامل ہو رہی ہیں. کوڑے کو آگ لگانے سے بارش. پاکستان میں سب سے زیادہ بارش والا مقام ہے مریخ. موسم گرما کی مون-سون ہوائیں پاکستان میں آتی ہیں بحیرہ عرب اور خلیج بنگال کی طرف سے. پاکستان کے میدانی علاقوں میں موسم گرما کا درجہ حرارت ہے 32 سینٹی گریڈ سے اوپر. الپائن جنگلات کتنی بلندی پر ہوتے ہیں 4000 میٹر سے زیادہ. پاکستان کی ساحلی آب و ہوا کے خطے میں کون سے علاقے شامل ہیں؟ صوبہ سندھ اور بلوچستان کے علاقے. ٹھیک ہے. آئی ایم ریپیٹنگ اگین. شور کی آلودگی کا نتیجہ ہے ہائی بلڈ پریشر. گلیشیئر پگھل رہی ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. مختلف گیسوں سے مل کر بنا ہے. ڈونٹ آن یور ویڈیوز. مختلف گیسوں سے مل کر بنا ہے کرۂ ہوا. اوزون کی تہ کمزور ہو رہی ہے. فضائی آلودگی سے خطرناک گیسیں ہوا میں شامل ہو رہی ہیں. کوڑے کو آگ لگانے سے پاکستان میں سب سے زیادہ بارش والا مقام ہے مریخ. موسم گرما کی مون-سون ہوائیں پاکستان آتی ہیں بحیرہ عرب اور خلیج بنگال کی طرف سے. پاکستان کے میدانی علاقوں میں موسم گرما کا درجہ حرارت 32 سینٹی گریڈ سے اوپر. الپائن جنگلات کتنی بلندی پر ہوتے ہیں 4000 میٹر سے زیادہ. پاکستان کی ساحلی آب و ہوا کے خطے میں کون سے علاقے شامل ہیں؟ صوبہ سندھ اور بلوچستان کے علاقے. پیج نمبر 29 شارٹ کوشچن آنسر. سوال نمبر 1. آلودگی سے کیا مراد ہے؟ کسی مواد کا انسانی نقطہ نظر سے کوئی بھی مواد کوئی بھی مٹیریل جو انسان کے لحاظ سے غیر متناسب مقدار میں داخل ہو جائے ماحول میں کسی غیر ماحول میں ان ایکول یا انفیئر طریقے سے زیادہ یا کم شامل ہو جائے جو اس کے وجود کے لیے نقصان کا باعث بنے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ماحولیاتی آلودگی ہے. سوال نمبر 2. ماہرین ماحولیات کے نزدیک فضائی آلودگی ایئر پولوشن، آبی آلودگی واٹر پولوشن، مٹی کی آلودگی سوائل پولوشن اور شور کی آلودگی نوائز پولوشن انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہے. تیسرا سوال گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے؟ گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے؟ قدرت نے کرۂ ارض اللہ نے زمین کے گیسوں کا ایک حفاظتی غلاف بنا رکھا ہے. انسانی سرگرمیوں سے گیسوں کے حفاظتی غلاف کی ترکیب میں فرق ہونے کے باعث انسان کی جو سرگرمیاں ہیں اس کی وجہ سے گیسوں کی حفاظتی جو غلاف ہے اس میں چینجز آتے جا رہے ہیں اور اوسط درجہ حرارت زمین کا ایوریج ٹیمپریچر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کرۂ ارض کے اوسط درجہ حرارت میں بدتدریج اضافہ. زمین پہ جو بدتدریج اضافہ اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گرین ہاؤس ایفیکٹ. کاربن ڈائی آکسائڈ. گرین ہاؤس ایفیکٹ سے کیا مراد ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، خاکی زراعت، آبی بخارات زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو جذب کرتے ہیں.
कार्बन डाइऑक्साइड, खाकी ज़रादाबी बुखारात ज़मीन से, जो ज़मीन से हरारत निकल रही है उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके नतीजे में वो हरारत को मुकम्मल तौर पे फ़िज़ा में खारिज नहीं होती, क्योंकि ज़मीन की जो टेम्परेचर होता है या जो ज़मीन के अंदर से जो हरारत निकल रही होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, खाकी ज़रात और आबी बुखारात जज्ब करते हैं, जिससे वो ज़मीन से खारिज नहीं हो पाते, और इस तरह कोहरा हवा के निचले हिस्से में दर्जा हरारत में इजाफा होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। सवाल नंबर 5, जमीन पर पानी के ज़खायर की सूरत में मौजूद है। हमारे जमीन पर 71 यानी कि 71% पानी है। इस कुल पानी का 97 यानी कि 71 का 97% पानी में जो है वो समंदर है। बाकी 3% में ताज़ा पानी नदियों, चश्मों, झीलों, हवा में नमी, दरियाओं, ग्लेशियर और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर की सूरत में मौजूद है। आबी आलूदगी कैसे पैदा होती है? जमीनी पानी। सवाल नंबर 6, आबी आलूदगी कैसे पैदा होती है? पानी की तबई और कीमियाई तरकीब। पानी जो है उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हैं नामुवाफिक यानी कि जो सडन चेंजेस आ रहे हैं आबी आलूदगी कहलाते हैं, जो इंसान के साथ साथ ऐसी जानदार जो जमीन पर जानदार हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। मिट्टी की आलूदगी। मिट्टी की आलूदगी की वजूहात क्या हैं जी? घरों, सनअतों, इंडस्ट्रीज, मार्केट्स और हस्पतालों से पैदा होने वाला कूड़ा करकट बगैर हिफाजती तदाबीर के तल्फ कर देना, जमीन पर उठा के कूड़े को वैसे ही फेंकना, कीड़े मार अद्वियात और खादों का भेजा यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो और बेवक्त इस्तेमाल जो है वो मिट्टी की आलूदगी बनता जा रहा है। मौसम की तारीफ करें। 8वां सवाल, आबो हवा की बुनियाद पर यानी कि जो आबो हवा की बुनियाद पर साल के एक मखसूस अरसे या मुद्दत को मौसम कहते हैं। ठीक है। यानी कि साल में एक ऐसा मौसम रहता है यानी कि 6 माह से 7 माह तक देखा जाता है, तो उस मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो उसको जो है उसको आबो हवा उस आबो हवा का जो मतलब जो होता है वो सब उसको मौसम कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान में पाए जाने वाले मौसमों के नाम। पाकिस्तान नीम मोतदिल खित्ते में वाक़या है, यानी कि पाकिस्तान टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, जिसमें 10 ज़ैल मौसम पाए जाते हैं। पहला मौसम सरमा, दूसरा मौसम बहार, फिर मौसम गर्मा और मौसम खिज़ा। सवाल नंबर 10, नसीम बर्री और नसीम बहरी से क्या मुराद है? दिन और रात के दर्जा हरारत के फर्क को, यानी कि दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो इसको नसीम बहरी और बहरी कहते हैं। यानी कि दिन के वक्त हवाएं समंदर से खुशी साहिली इलाकों में नसीम बहरी और नसीम बहरी साहिली इलाकों पे चलती हैं। समंदर से खुश्की की तरफ हवाएं चलें तो वो नसीम बहरी। ठीक है। और रात के बाद जो होती हैं हवाएं वो खुश्की से समंदर की तरफ चलती हैं तो वो नसीम बहरी कहलाती है। सवाल नंबर 11, पाकिस्तान की आबो हवा के खित्तों के नाम। 1951 में पाकिस्तान के मशहूर जोग्राफियादान की जो मशहूर जोग्राफियादान है काजी सैयदुद्दीन अहमद ने पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से 10 ज़ैल खित्तों में तकसीम किया, यानी कि जो काजी सैयदुद्दीन थे उन्होंने 1951 में ये देखिए नीचे 4 पाकिस्तान के हिस्से हैं जो आबो हवा के लिहाज से। पहला नीम हारी बर्री पहाड़ी आबो हवा का खित्ता, दूसरा नीम हारी बर्री सतह मुर्तफा का खित्ता, तीसरा नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का खित्ता, और चौथा ये देखें हारी साहिली आबो हवा का खित्ता वो ये वाला है। ठीक है। अच्छा जी, सवाल नंबर अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान के मौसमों की खसूसियात बयान कीजिए। मौसम। पाकिस्तान आबो हवा की बुनियाद पर साल के मखसूस अरसे या मुद्दत को मौसम कहते हैं। आबो हवा के लिहाज से जो साल का एक मखसूस अरसा होता है यानी कि 6 से 7 माह में मौसम पाकिस्तान मतलब किसी भी मुल्क की आबो हवा कैसी है उसे मौसम कहा जाता है। पाकिस्तान के मौसम। पाकिस्तान नीम मोतदिल खित्ते में यानी कि टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, जिसमें 10 ज़ैल मौसम है। पहला है मौसम सरमा,
पाकिस्तान में मौसम सरमा का आगाज दिसंबर से होता है। मैंने आप लोगों को ये पहले भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है। पाकिस्तान में जो मौसम है वो सरमा यानी कि सर्दियों का मौसम दिसंबर से फरवरी तक जारी होता है। इस मौसम में मुल्क के बेशतर हिस्सों का औसत दर्जा यानी कि मुल्क के जो बेशतर हिस्से हैं उनका जो टेम्परेचर है वो 18 सेंटीग्रेड से कम रहता है। मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत यानी कि जो मैदानी इलाके हैं उनमें सर्दी की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में तो दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से भी कम रहता है, इनकी बर्फबारी शुरू हो जाती है। इस मौसम में बारिश जो है मौसम गर्मा के लिहाज से कम होती है। पाकिस्तान में जो मौसम है मौसम सरमा उसमें बारिशें कम होती है, मौसम गर्मा में बारिश ज्यादा होती है। अगला है बहार, मौसम बहार। देखिए सर्दी का मौसम है दिसंबर से फरवरी, ठीक है। फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च में मौसम बहार आता है। मौसम बहार मार्च से उसका आगाज होता है, अप्रैल के इख्तिताम तक जारी रहता है। मतला यानी कि जो मौसम होता है आसमान ज्यादातर साफ रहता है बाहर के मौसम में, और कुछ शुमाली इलाका जात जो है यानी कि नॉर्थन एरियाज में गरज चमक के साथ बारिश होती है। इस मौसम में दरख्तों के और पौधों के नए नए पत्ते निकलते हैं और तरह तरह के खूबसूरत फूल खिलते हैं। ये मौसम बहार कहलाता है। तीसरी हेडिंग मौसमी गर्मा। देखिए मार्च सर्दी थी, दिसंबर से फरवरी, फरवरी के बाद होता है मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, तो मई में गर्मी का मौसम आता है। मई की आमद होती है, मौसम गर्मा का आगाज होता है जो सितंबर के वस्त तक जारी रहता है। इस मौसम में दर्जा हरारत जो टेम्परेचर होता है वो 18 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है और मैदानी इलाकों में बिलखुसूस सहराओं में शदीद गर्मी पड़ती है। मौसम गर्मा है तो गर्मी पड़ेगी, अलबत्ता साहिली इलाकों में समुद्र के असरात होते हैं जिस वजह से मौसम मोतदिल ना कि ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म रहता है। जबकि पहाड़ी इलाकों में गर्मी की शिद्दत जो है वो भी ज्यादा नहीं होती क्योंकि वहाँ पे मौसम खुशगवार और ठंडा रहता है। मौसम खिज़ां, अब देखें ये देखिए सरमा था दिसंबर से फरवरी, फरवरी के बाद मार्च से अप्रैल तक बहार, अप्रैल के बाद आता है मई में, मई से लेके सितंबर तक गर्मी का मौसम, और सितंबर के बाद होता है अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर तक खिज़ा का मौसम चलता है। ना ज्यादा मौसम जो है इसमें ना ज्यादा मौसम जो है ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा सर्द। बारिश की मिकदार भी इंतहाई यानी कि कम बारिशें होती हैं। जुनूबी पंजाब और शुमाली इलाका जात यानी कि जो साउथ पंजाब है और शुमाल मशरकी सिंध यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो सिंध है उसमें गर्द आलूद हवाएं चलती हैं। शुमाली इलाका जो नॉर्थन एरियाज में जो गरज चमक के साथ बारिश होती है। इस मौसम में दरख्तों और पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसे मौसम खिज़ा कहते हैं। सवाल नंबर 2, आज मश्क इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। जंगलात की अहमियत बयान कीजिए। देखिए जी जंगलात किसी भी मुल्क में मोतदिल आबो हवा यानी कि जहाँ मौसम मॉडरेट होता है किसी मुल्क का, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, वहाँ पे जो जंगलात हैं उनका रकबा 20 से 25% होना जरूरी है। लेकिन हमारा पाकिस्तान, हमारे मुल्क में जो जंगलात है वो 5% से भी 5% रकबे से भी कम है। ठीक है। पाकिस्तान की आबो हवा कदरे खुश्क होने की वजह से जंगलात के लिए मौजू नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो हमारे जंगलात भी इतने ज्यादा नहीं होते। पाकिस्तान की आबो हवा में फर्क की वजह से यहाँ से जो 10 ज़िले हमारे पास जंगलात पाए जाते हैं उनमें पहला है शुमाल यानी कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में जो जंगलात यानी कि शुमाल मगरबी इलाकों में जो जंगलात हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाके, कुछ शुमाल नॉर्थ और शुमाल मगरबी यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में जो है औसतन बारिश जो है वो बाकी इलाकों की निस्बत ज्यादा होती है। यहाँ सदाबहार यानी कि सारा साल के जंगलात पाए जाते हैं जिनमें देवदार, कील, करतल, वीडियो मत ऑन कीजिएगा, देवदार, कील, करतल, सनोबर के दरख्त जो हैं वो पाए जाते हैं। इन दरख्तों से आला किस्म की इनसे अच्छी लकड़ी मिल जाती है। यहाँ शाहबलूत, अखरोट और काट के दरख्त भी बकसरत काफी अच्छी मतलब तादाद में पाए जाते हैं। मरी, एबटाबाद, मानसहरा, चित्राल, सवात और दीगर जो है ये इलाके जो है शहर हैं, इन इलाकों में सेहत अफजा मकामात इनके जंगलात पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं।
पहाड़ी दामनी इलाकों के जंगलात, यानी कि पहाड़ी इलाकों के आसपास जो वैलीज होती हैं उनके जंगलात। पहाड़ी दामनी इलाकों में ज्यादातर फलाई, काहू, पहाड़ी दामनी इलाकों में जो जंगलात है उनमें फलाई, काहू, चुन, बेर, तूस, संबल के दरख्त जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनमें पेशावर, मर्दान, कोहाट, अटक, रावलपिंडी, झेलम और गुजरात के जो हैं वो अजला जो हैं अजला ज़िला की जमा होती डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सूबा बलूचिस्तान में कोयटा है, कलार डिवीज़न में जो है तरखार ज़्यादातर बलूचिस्तान, कोयटा और कलात में ज़्यादातर जो है खारदार झाड़ियाँ यानी कि कांटों वाली झाड़ियों के अलावा माजू, चलगोजा, तूत और पॉपुलर के दरख्त पाए जाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग मैदानी इलाकों के जंगलात। मैदानी इलाकों में कुछ जंगलात मौजूद हैं जिनमें शीशम, देखिए दरख्तों के नाम हैं शीशम, पॉपुलर, शहतूत, संबल, जामन, आपको पता है दरख्त हैं जहाँ पे फल पाए जाते हैं, धरीक, सफेदे के दरख्त जो हैं वो मिलते हैं, ये दरख्तों के नाम हैं और जहाँ पे ये फल भी मिलते हैं। इलाकों में छांगा मांगा, चीचा वतनी, खानेवाल, टूबा टेक सिंह, रख गुलामा, थल, बहावलपुर, तोनसा, सखर, कोटरी, गद्दू के जो है वो इलाके पाए जाते हैं, मैदानी इलाके, और जो ऊपर लिखे हुए थे वो इधर यहाँ पे ये दरख्त पाए जाते हैं। दरियाओं के साथ साथ बेले के दरख्त, बेले वो दरख्त होते हैं जिनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी कि दरिया के साथ जो दरख्त होते हैं जिनके साथ बड़े बड़े पत्ते होते हैं उन्हें बेले के जंगलात कहा जाता है। इलावा अजीम अहम कौमी शहराओं और नहरों के साथ भी जंगलात देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ जो जंगलात हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए। आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 बड़े माहौलियाती मसाइल की पूरी मश्क पढ़ा दी है। ठीक है, और आप लोगों ने इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो याद करने हैं नेक्स्ट पेपर के लिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन Zoom ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, और थैंक यू।